شاعر کا خیال جو ہے وہ لفظوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. چونکہ لفظ محدود ہوتے ہیں اس لیے خیال کو محدود ہونا پڑتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کتنا بڑا ہے بزرگان محترم؟ جب لفظ بہت استعمال کیا تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بہت کا مطلب کتنا بڑا ہے اللہ بزرگان محترم؟ اردو بولنے والے جانتے ہیں کہ لفظ بہت کہاں استعمال ہوتا ہے. یہ پیسے آپ کے لیے کافی ہیں؟ کہا ہاں میرے لیے بہت ہیں. بہت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک میری ضرورتیں جاتی ہیں اس سے زیادہ ہے، اس لیے بہت ہے بزرگان محترم. وہاں بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا. کتنے لوگ تھے؟ بہت تھے، جنہیں میں گن نہیں سکتا تھا، یعنی جنہیں میں شمار نہ کر سکوں وہ میرے لیے بہت ہے بزرگان محترم. اللہ اکبر کا ترجمہ شاعر نے کیا ہے بہت زبان کے حوالے سے. بہت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کی حد ختم ہوتی ہے. اللہ کے لیے تو حد کا تعین ہی نہیں کیا جا سکتا بزرگان گرامی. پھر کوئی منزل تو ایسی ہوگی جو اللہ کو سمجھا سکے کہ اللہ کی حد کیا ہے بزرگان محترم. کون سمجھائے گا بزرگان محترم؟ بس اسی فرشادہ کا خیال ہے. اللہ کو وہی سمجھا سکے گا جو خود اللہ ہے، اور تو کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا. یہ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ اللہ تو ہی ہمیں سمجھا سکتا ہے، اور وہ اگر ایک دفعہ سمجھانے کے لیے بلا لے تو پھر واپس نہیں بھیجتا. اسے سمجھ آ جائے اللہ کو. یہ ہماری بات ہے. ان کے منصب اور ہوتے ہیں جنہیں بلانے کے بعد اپنا نور دکھانے کے بعد انہی میں سے کسی جاننے والے کے لہجے میں گفتگو کرنے کے بعد واپس بھیج دے. منزلیں ہیں، کوئی حد ہے. ہم نے جاننا چاہا کہ بارے الہا تیری حد ہے کیا؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کہ اچھا تم وہی چیزیں دیکھ سکتے ہو نا جہاں تک تمہاری نظروں کی حد ہے. نور ہے بزرگان محترم. یہ جو لائٹ کی صورت میں آپ تک پہنچا ہے. اب اگر کوئی تقوی پسند بعمل وہاں جا کر بلب لگا دے جہاں سے یہ نور پیدا ہو رہا ہے. اکثر دیکھا ہوگا بزرگان محترم کچھ بڑے بڑے ڈیم ہیں، وہاں ٹمٹماتا ہوا ایک بلب جلتا ہے جس میں نظر بھی نہیں آتا. وہاں براہ راست اس نور سے بلب جلائے تو جو بلب کا حشر ہوگا وہی ہمارا ہوگا بزرگان گرامی. اس لیے کہ مرکز نور تک ہماری رسائی نہیں ہے. اب وہ ہم تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ چیز وہی ہوتی ہے لیکن اس پر کچھ کوٹنگ کر دی جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ کوئی ایسا مٹیریل چڑھا دیا جاتا ہے جو اس مرکز سے نور کو ہمارے دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے. انیس بھائی الیکٹریکل انجینئر ہیں، ان میں ایسا مٹیریل چڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ نور اپنی اصل حالت میں نہ پہنچے، آپ دیکھ نہیں سکیں گے. تو آپ کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے اسے کوئی روپ دینا پڑتا ہے بزرگان محترم. ہوتا مرکز وہی نور کا ہے لیکن آپ اس لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا مرکز کہاں ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. بس اللہ نے کہا کہ تم مجھے جاننا چاہتے ہو نا کہ میری حدیں کیا ہیں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. میں بشری لباس میں کچھ شخصیتیں بھیج دیتا ہوں، لباس بشر میں تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں. بس انہیں دیکھتے رہنا. میں احد ہوں، کتنا بڑا احد ہوں. پہلے اس محمد کی ثنا کر لو تب میں سمجھ آؤں گا. محمد بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات مل کر اس کی ثنا کرے، وہ سمجھ آ جائے تب مجھے سمجھنا. جب اس کے قدموں کی خاک سمجھنا آئے تو اس محمد عربی کو سمجھنے کے لیے اللہ احد ہے، محمد بنا کر بھیجا جس کی بہت حمد کی جائے. کتنی حمد کریں گے بزرگان گرامی؟ آج تک زبان انسانیت عاجز ہے محمد عربی کی ثنا سے. جب تم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو مجھے کیا پہچانو گے؟ وہ سجدہ کر
तारीफ करेगा, वो बताएगा कि मैं कौन हूं, तब तुम्हें समझ आएगा कि हम तो इसके रसाई नहीं। मैं आला हूं, कितना आला हूं ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। कोई अली सजदा करके बताएगा तब हमें समझ आएगा कि मैं कितना आला हूं। जिसको दुनिया समझने से आजिज है। नुसैरियों का प्रॉब्लम क्या बुजुर्गान मोहतरम, वो नुसैरी जो सिफात इलाहिया देख रहा है एक बशर में, मुर्दे को ठोकर मार रहा है, वो जिंदा हो जा रहा है। वो मुर्दा कम से कम आज के जिंदों से तो बेहतर है जो अली की ठोकर से जिंदा हो जाता है। ठोकर मार रहा है। हमने देखा सिफात इलाही ये है जो मुर्दों को जिंदा कर दे, अली ठोकर मार के जिंदा कर रहा है। एक टुकड़ा है, रह नहीं सकता। लेकिन नुसैरियों का प्रॉब्लम क्या है, वो जो तौहीद के दुश्मनों को खत्म करने के लिए आया है, मरहब को कत्ल किया। कहीं तारीख में मिलता है कि मरहब को दोबारा जिंदा करके पूछा कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। अत्तर को कत्ल किया, कभी दोबारा जिंदा किया। जितने बड़े बड़े मुनकिरीने तौहीद हैं उनको कत्ल करके छोड़ दिया। लेकिन जब नुसैरी को कत्ल किया तो ख्याल आया कि इससे पूछे तो सही। वो कहता क्या था बुजुर्गान मोहतरम, कहता था अली तू मेरा अल्लाह है, रब है। अली ने कत्ल कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है, देखिए मैं मिंबर पर बैठा हूं और मुश्किल मंजिल है। अब मैं अपने मौला के हुजूर हाथ जोड़ के कहता हूं, जब ये देखना था कि जो जिसे कत्ल किया है वो क्या सोचता है, तो मरहब को भी जिंदा करके देख लेते, अंतर को भी जिंदा करके देख लेते। नुसैरी को दोबारा जिंदा किया। अब रवायत बुजुर्गान 7 दफा जिंदा किया, लेकिन रवायत है 1 दफा जिंदा किया। नुसैरी भी नुसैरी था बुजुर्गान मोहतरम। कहा अब बताओ मैं कौन हूं। कहा पहले तो शक था, अब यकीन आ गया है। कहा मैं तुझे आग में जला दूंगा। कहा और यकीन आ गया है, वही आग में जला सकता है जिसने आग पैदा किया। अभी वैसे हैं, लेकिन इसमें लजने की जरूरत नहीं। बिल्कुल वाज़ेह कर, मैं फातिह अर्ज़ समावात हूं। कितना बड़ा फातिह हूं। पहले इस फातिमा को देखो जो इस चादर के नीचे है। इसकी इस्मत की मंजिलें समझ आ जाए तो फिर समझना कि मेरी इस्मत क्या है। मैं कदीमुल एहसान हूं, मेरा क्या एहसान है। पहले ही हसन हुसैन का एहसान समझ आ जाए। मैं मंजिलें तमाम कर चुका हूं। 2 मंजिलें हैं जहां मुझ जैसा कमअक्ल और कमिल भटक जाता है। बुजुर्गान गिरामी, अल्लाह की रजा हासिल करना कितना मुश्किल है। सारी सारी रात महराब इबादत पर, यह अंबिया का शेवा है। अली भी महराब इबादत पर सारी रात खड़ा रहा, लेकिन अल्लाह की रजा अली को मिली नहीं। देखिए मैं ज़हमत से इतना खामोशी इख्तियार न कीजिएगा। सारी सारी रात हजार रकत नमाजें पढ़ी, लेकिन अल्लाह की रजा नहीं मिली। कब मिली? जब बिस्तर पे सो गए। वाह वाह। अली बिस्तर पे सो गया। अली ने मांगी नहीं रजा, सौदा किया था कि या रसूल अल्लाह इस बिस्तर पे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी। देखिए बड़ा सा टेक्निकल सा मसला है। कितना बहुत छोटा सा मसला, छोटा सा लेकिन बात समझ आने वाली। या अली बिस्तर पे सो जाओ। अब हालात देख लेते, माहौल देख लेते, खिंची हुई तलवारें देख लेते, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। या तो अली को पता ना हो बुजुर्गान गिरामी, जब अकीदा ये हो गया अली को पता ना हो तो फिर आखिरत के दिन अली भी कहेगा तुम्हें हमारा पता नहीं है। समझ रखिए क्या मतलब है। इस बिस्तर पे सो जाओ। देखिए जुमले हैं, लफ्जियात है। क्या या रसूल अल्लाह क्या इस बिस्तर पे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ। अब मौला कायनात फख्र से कहते हैं कि जो नींद उस रात बिस्तर पे आई। शायर के 4 मिसरे हैं। शबे हिजरत खुदा हाफिज है रुखसत होने वाले का, मगर फिर दम फिर भी निकला जा रहा है रोने वाले का। इधर से सोने वाला भी कुछ इस अंदाज से सोया, रजाएं ढूंढती फिरती है बिस्तर सोने वाले का। अल्लाह की रजा की हद क्या है? ये हमें आपको
दूसरा बुजुर्गान ग्रामी, जब बाप ने इस अंदाज से समझाया है या अल्लाह की रजा बेटे ने समझाया? अल्लाह तू बहुत बड़ा है और तेरे दीन पर मुश्किल वक्त है, मैं कुछ कुर्बानियां पेश करता हूं। क्या मेरे अब्बास के बाजू कलम होने से तेरा दीन बच जाएगा? मेरे अब्बास के बाजू हाजिर है। तो बस मुश्किल जुमले हैं। अजीब जुमला है मौलाए कायनात का, अजीब जुमला है मौला हुसैन का। देखिए जब हुर को रुखसत किया है, हुर जब आया है और लश्कर में शामिल हुआ है, तो हुर का बेटा भी हुर के साथ आया। हुर से पहले मैदान जंग में हुर का बेटा गया। तवज्जो रखिएगा, बस कहीं से गुरेज है। बेटा घोड़े से गिरा, हुर को आवाज दी, हुर मख्तल की तरफ दौड़ा तो हुसैन ने बाजू थाम लिया। कहा हुर, जवान बेटे पे बाप को जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसा हुसैन करीम हुर का बाजू थाम के कहा, हुर शरीयत ने इजाजत नहीं दी है कि जवान बेटे की लाश पर बाप, बूढ़ा बाप जाए। हुर अभी हुसैन जिंदा। बस तमाम सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद मशीयत इलाही खामोश है। वो वक्त आया कि जब शबी पैगंबर को रुखसत किया। बुजुर्गान ग्राम अभी हुर को कह चुके हैं ना कि जवान बेटे की लाश पर बूढ़ा बाप नहीं जा सकता, लेकिन जब अली अकबर घोड़े से गिरे हैं ना, अजीब अंदाज। देखिए बुजुर्गान ग्रामी, शहजादा अली अकबर जानता है ना कि बाप बूढ़ा है, और जितने से जवान गिरे उन्होंने मदद को पुकारा, लेकिन अली अकबर ने क्या कहा? बाबा मेरा सलाम आखिर हो। तमाम बुजुर्गान ग्रामी, बर्ची का फल अली अकबर के सीने से खींचा। बरेलाहा इस जवान को पेश कर रहा हूं। मशीयत इलाही हैरत से देख रही है, हुसैन तेरे सब्र की हदें। उसके बाद के हवाले से अली असगर को उठाया। बरेलाहा ये आखिरी फिदिया है, तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूं। बुजुर्गान गिरामी, कोई हद नहीं है उसकी रहमतों की और उसके हुजूर नजराना पेश करने की, लेकिन जब अली असगर को पेश कर चुके ना, उस वक्त आसमान की तरफ निगाह की। बरेलाहा अब ये हुसैन बचा है तेरी बारगाह में आने की। खैमे के अंदर आए, सकीना मेरा सलाम आखिर हो। बच्ची आगे बढ़ी, गर्दन ने बाहें डाल दी। बाबा कहाँ जा रहे हैं? उस मैदान में जाने के बाद कोई वापस नहीं आया। सकीना आज से तुम माँ के हवाले। एक एक को खुदा हाफिज किया। मैं जहां तक ज़हमतें तमाम कर रहा हूँ बुजुर्गान गिरामी, उस वक्त हुसैन घोड़े पे बैठे। बरेलाहा बस अब ये हुसैन बचा है। हुसैन अपनी तेरी बारगाह में अपने आप को लेकर आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं पेश किया, हमला करके बताया। बरेलाहा तूने अकबर जैसा बेटा दिया था, किसी का जवान बेटा मारा जाए तो वो जमीन पे उठ नहीं सकता। हमला करते हुए क्या कहते थे? उठो देखो वो आया है जिसका जवान बेटा मारा। ये कह के हमला करते जाते थे। ज़ुहैर इब्न क़ैर उठो, अभी इब्न मज़ाहिर उठो, उसकी जंग देखो तो 3 दिन का भूखा प्यासा है। आखिरी जुमले, हमला करते करते वो वक्त आया जब मशीयत इज़्ज़ी की खुद आवाज आई। बस हुसैन तेरे सब्र की हदें पूरी हो गई। वो जिसकी बारगाह में कोई हद नहीं है, वहां हुसैन ने सजदे में सर रखा। मशीयत की आवाज आई, रज़न में क़ज़ाए व तस्लीमन ले अमरी। हुसैन ने सजदे में सर रखा। उधर एक बीबी आई, शिमर के खंजर से लिपट के क्या कह रही है? ए शिमर, मेरे बच्चे को ज़िबा न करो, मैंने चकिया पीस पीस। Allah